पाक की मिसाइलों को बेशक उधार का हथियार मानकर लोग खिल्ली उड़ाते रहे, लेकिन सच तो ये है कि चीन और उत्तर कोरिया से हासिल मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान की ताकत अब हिंदुस्तान पर भारी पड़ चुकी है। जी हां, अपनी फौज को मिसाइलों से लैस करने के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की परेड और सरकारी विज्ञापनों में जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें अभी हिंदुस्तानी फौज के किसी काम की नहीं है। अग्नि, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के बारे में हिंदुस्तान की फौज अब तक यही पता नहीं लगा पाई है कि ये मिसाइलें कितना सटीक निशाना लगा सकती हैं। ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि हमारी फौज का सबसे कारगर हथियार ये मिसाइलें अभी तक टेस्ट में पूरी तरह पास नहीं हो पाई हैं। फिर भी सरकार और सेना का दावा यही है कि हम दुश्मन पर वार और पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी हालात के लिए भारतीय सेना की तैयारियों के दावे की हकीकत ये है कि फौज के पास कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलों को छोड़ दें तो भारत के पास दूसरी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो जंग के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान ने अपनी फौज को कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैस कर दिया। पाकिस्तान की मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब समझ में नहीं आता कि मुंबई हमलों के बाद आखिर भारत कौन से विकल्प खुले रखने की बात करता रहा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान की मिसाइलों से ही सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फौज को जिन मिसाइलों से लैस किया है उनसे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। जी ख़वातीन और हज़रात, हिंदुस्तान के मीडिया हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखता है, उनकी आर्मी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फौज के बारे में, ये राय हमारी नहीं थी, ये राय उनकी थी। हम तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। हम तो अब भी हम चाहते हैं, मगर किस सतह पे हम हैं ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। You hear some news from us, perhaps, that India has test-fired a missile. Don't jump to alarm, because although that can sound quite disturbing and alarming, apparently this was planned, and this is kind of par for the course. It's par for the course because India, one, has a very transparent program. We know what type of weapons they have. One would assume that it did happen. We have to verify that. But they have a very verifiable program, and they're always very transparent about what Right. Funny, according to the Associated Press, they called to get a comment from India, and it said the person who answered the phone at the Defense Ministry said, no one's available to comment because they're all at the test site. So maybe they'll call back a little later and find out more. The entire government is over there. 750 soldiers from across the world have descended on the Brecon Beacons in Wales to suffer through one of the toughest exercises ever devised. The Cambrian Patrol takes 2 days to complete and test the soldiering skills of the teams as they cross some of the most arduous terrain you could imagine. And as Toby Sadler reports, this year's event has attracted entries from as far afield as Australia and Pakistan. Picturesque, undoubtedly, if all you want to do is walk your Labrador. But imagine putting the weight of a large dog on your back for 2 days and carrying it for 55 kilometres. The Belgians have come across a police station in the fictional enemy state of Nethostan. Many dread. Eventually the punishment comes to an end. With plasters on blisters, they wait to hear how they've done. Infantry Regiment Pakistan! They can get a gold, silver or bronze award, or a simple pass. Are awarded a gold medal. Yeah, it was a great moment for us, rather one of the great moments in our life.
It's a serious achievement. From more than 90 teams, only about 6 will get a gold award. Lastly, there's time for a team photograph, and for some, the chance to prove themselves at an even higher level. Toby Sadler, Forces News. और लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की परेड के दौरान भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार लड़खड़ा गया और उसकी पगड़ी उतर गई। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की परेड के दौरान भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा, जिस पर पाकिस्तानी शहरियों ने तालियां बजाईं और रेंजर्स के हक में नारेबाजी की। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हस्बे मामूल जारी थी। दोनों ममालिक के नौजवान आमने सामने जोश खरोश से परेड कर रहे थे कि इतने में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नौजवान तवाजुन कायम ना रख सका और जमीन पर गिरते गिरते बचा। इस दौरान उसकी पगड़ी उतर गई, जबकि पाकिस्तानी रेंजर्स का जवान मुस्तैदी से अपने फराइज अंजाम देता रहा। इस मौके पर परेड देखने वाले पाकिस्तानी शहरियों ने रेंजर्स के जवान की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाईं और नारेबाजी की। इस वाक़े के बावजूद परेड मामूल के मुताबिक जारी रही और दोनों तरफ के सरहदी मुहाफिजों ने अपने अपने परचम एहतराम से उतार लिए।